आपका और सब वैंकूवर के निवासियों को जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इतना भव्य स्वागत मेरा किया। ये बताइए कि इन 14 सालों में आप क्यों नहीं आए वैंकूवर? एक तो बीच में शो करना छोड़ दिया था। आई थिंक आई लास्ट केम हियर इन 83 एंड आई हैड बीन डूइंग रेगुलर शोज फॉर अ लॉन्ग टाइम। शो करना एक पूरा चीज़ ऑर्गेनाइज करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है और हमारी शूटिंग शेड्यूल्स में से अपने आप को निकालना महीने 1.5 महीने के लिए, फिर उससे पहले 3-4 महीना रिहर्सल्स और ये सब प्रोग्राम बनाना, इसमें काफ़ी वक्त निकल रहा था और कई सालों से मैं लगातार करता आ रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना चाहिए और यही वजह थी कि मैं नहीं आ सका। जब आप स्टेज पे जाते हैं, मैंने अभी आपको देखा, आप मेडली कर रहे थे और फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स आपका ये आइटम रहा। One can see on your face that you have a lot of excitement and the audience is completely charged. Does that give you a lot of high? Yes, it's an amazing kind of energy that one gets. I'm sure that anybody that has been onto any public platform will endorse this thought of mine, that it's the very warm energy, the positive energy that flows out from the people and their love and their affection and their show of affection that actually gets to you and provokes you really to give off your best and do more than what you would do normally. When you see so many people giving you so much love, I know that you've been receiving this love since 1973. Do you wake up in the morning and when you do your prayers, and I've seen some of your videos, you must be very thankful to God for whatever you've got? Yes, indeed I am. I'm very thankful to God for having made me what I am. I would not have been that had it not been for the affection and the love of the fans and the people that have continued to see my films and continue to see them year after year. This is something that I've always felt very deeply towards and extremely emotional towards it, because it's not just the films that they have sided me with. Even in my personal traumas, the fans have always been with me, whether I was down in hospital, struggling for my life, or any other issues that were unconnected with films. They've always stood by me and have given me so much emotional strength that I'm indebted to them for life. I cannot find words, or neither can I say how I can repay this, but this will be an unpaid debt that I'll have to carry to my grave. Maybe all of them owed you something and they're paying you back. I think I owe them much more than they owe me. अमिताभ जी, आपको कौन सा खाना अच्छा लगता है? देसी इंडियन फूड। मैं वेजिटेरियन हूँ जी। बस मामूली सा साधारण दाल भात आलू चावल। कौन से पसंद के रंग हैं आपके? अब रंग तो सभी पसंद हैं, ऐसा कोई ख़ास पसंदीदा रंग नहीं। काला सफ़ेद यही चलता है। जल्दी से आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। भारत की 50वीं सालगिरह है। मुझे मालूम है कि एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बन रही है जो आज़ादी के बारे में है। उसके बारे में 2 शब्दों में कुछ बताइए। कौन सी फिल्म? जो आप बना रहे हैं, इसमें इट्स अबाउट द 50th एनिवर्सरी। वो अभी it hasn't been finalized yet. We're just working on it. The inspiration is there to do something for 50 years of independence, but we're not sure whether how it's going to take a shape. So it'll be a little early to talk anything about it. मृत्यु दाता के बारे में पूछ रही थी। इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए। मैंने फिल्म देखी है, अब बुरा नहीं मनाएंगे अगर मैं कहूँ मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। जाहिर है, और ऐसा ही कुछ रिएक्शन भारत की भी जनता से हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जो टॉपिक था वो कुछ प्लेड आउट हो गया है। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स सो मच नाउ एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर। आई थिंक दैट इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द कंट्री वेयर corruption and wrong political practices have numbed the people, so to say. Mehul Kumar has always made these very topical, very strong, very emotionally patriotic films, and he felt that this was something that would work. Unfortunately, I think that the people have gone past that period where they would be wanting to see yet another such film, and that's why I feel that we've gone wrong there. Also, I think that we put in all our best, but it's very difficult to gauge what the people want. If we knew what they wanted, we'd never make an unsuccessful film.
But this is life, and life goes on, and we'll work harder next time, to the next project. Any film that you act in, people would love to see you. I thank you very much for giving us time. I know you've just finished the show. What do you think of the Vancouver audience? I thought it was brilliant. Even when I was here 14 years ago, it was full of enthusiasm and lots of warm reaction and feeling, and it hasn't changed at all. It's the same kind of reaction, same kind of people, and I hope it continues. And as I said on stage just now, if this is what it's going to be like, I'll have to keep coming here again and again. That's a promise, I hope. Yes. Thank you. Thank you so much, Ashwin. किस तरह से शूटिंग करते देखिए आपने कितने गर्म कपड़े पहन रखे हैं कई दफ़े पहनने पड़ते हैं ऐसे कपड़े फैशन को मद्देनज़र रखते हुए या फिल्म की शूटिंग को मद्देनज़र रखते हुए तो आप लोग इसीलिए दुबले रहते हैं बहुत ज़्यादा शायद ये वजह है ये आप जो शूटिंग कर रहे हैं फिल्म इसका नाम शराबी है जी हाँ प्रकाश मेहरा जी की फिल्म क्या कहानी है इस फिल्म की अगर इट्स नॉट अ सीक्रेट नहीं सीक्रेट नहीं है शराबी जैसे कि नाम ही बताता है आपको एक अय्याश शराबी बेटे की कहानी है अच्छा और जो हम सीन अभी देख रहे थे उसमें क्या हो रहा था यहाँ पर वो बाप जो है बेटे की शादी करवाना चाहता है और कुछ उम्मीदवार आए हुए हैं अच्छा और बेटा उनसे शादी नहीं करना चाह रहा है बेटे के दिमाग में पहले से कोई लड़की है जी क्या हाँ। अच्छा और वो इन सब का मजाक उड़ा रहा है अभी इस समय। आपके साथ इस फिल्म में हीरोइन कौन है जयप्रदा आपकी जयप्रदा के साथ काफ़ी फिल्में आ रही हैं नहीं ये पहली होगी अच्छा रिलीज पहली होगी लेकिन साइन तो आपने काफ़ी किए हैं नहीं एक ये है और एक और है मद्रास की फिल्म और कौन सी हीरोइंस हैं आपके साथ आने वाली फिल्म फिलहाल तो यही दोनों हैं एक श्रीदेवी जी दोनों साउथ की हैं हाँ। नई लड़कियां हैं और तो कोई अभी ऐसी नई फिल्म आई नहीं है अभी सिर्फ 2-3 फिल्में हैं जिनमें जयप्रदा और श्रीदेवी ही मेरी फिल्म हाल ही में आपकी फिल्म कुली रिलीज़ हुई और रिपोर्ट्स के मुताबिक शायद ये फिल्म आपकी सबसे बहुत ज़्यादा कामयाब फिल्म रहेगी जी हाँ और उसके साथ ही इनकलाब भी रिलीज़ हुई जी और उसकी भी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं लेकिन मैं सोच रही थी कि 2 फिल्में एक साथ एक ही कलाकार की थोड़े से अरसे में रिलीज़ हो जाएं तो नुकसान नहीं होता किसी एक फिल्म को इतनी नज़दीक नहीं थी ये मेरे ख्याल से खुली शायद 2 दिसंबर को रिलीज़ हुई और ये जनवरी में हाँ लेकिन एक ऐसा भी वक्त था जबकि एक महीने में मेरी 4 फिल्में रिलीज़ हुई थी हाँ 1978 में जी जी और मुकद्दर का सिकंदर कस्मे वादे त्रिशूल डॉन चारों फिल्में एक महीने में रिलीज़ हुई थी एक ही महीने और चारों कामयाब फिल्में थीं तो अगर फिल्म में दम होता है तो फिल्में चलती हैं अगर नहीं होता तो उनको चाहे आप कितना भी सेपरेट कर दीजिए वो नहीं चलेंगे पिछले दिनों आपने शायद त्रिदंडी संन्यास लिया था सबरीमला क्या क्या होता है सबरीमला एक जगह है केरला में अच्छा वहाँ पर स्वामी अयप्पा हैं हाँ तो उनके लिए एक 41 दिन का फास्ट रखना पड़ता है अच्छा गिरवे कपड़े पहनने पड़ते हैं हाँ। शराब मांस से परहेज करना पड़ता परहेज रखना पड़ता है फैमिली लाइफ नहीं रख सकते है। अच्छा ज़मीन पे सोना पड़ता है और नंगे पाँव चलना पड़ता है तो आपने सब कुछ किया 40 दिन के लिए किया और उस दौरान आप काम भी उसके करते बाद फिर यात्रा पे जाना पड़ता है जहाँ सबरीमलई है हैं? अच्छा वो इस पहाड़ के ऊपर है और नंगे पाँव पथरीले रास्ते पर कुछ 40 मील चल के जाना पड़ता है तो क्या आपने कोई मन्नत मांगी थी नहीं ऐसे ही नहीं और कुछ हमारे और दोस्त थे वो जा रहे थे तो मैं भी ये करना चाहता था आजकल आप बहुत साउथ की फिल्मों में काम कर रहे हैं मैंने सुना है कि साउथ का एक तो उनका काम करने का तरीका बहुत ऑर्गेनाइज्ड है जी हाँ एक पेमेंट्स बहुत जल्दी हो जाती हैं नहीं अगर जल्दी काम खत्म हो जाएगा तो पेमेंट भी जल्दी होती है सुना है आपकी ये फिल्म भी बहुत जल्द ख़त्म हो रही है शराबी हाँ जी ये इस महीने के अंत तक खत्म हो जाएगा और रिलीज़ कब तक है इसकी शायद मई में आप वैंकूवर में आए थे पिछले साल खूब धमाका किया आपने पूरे कनाडा भर में दोबारा कब आने का इरादा है अभी तो कोई मौका नहीं लग रहा है लेकिन एक बार दोबारा ज़रूर जाना चाहूँगा क्योंकि वहाँ की जगह मुझे बहुत अच्छी लगी वैंकूवर और वहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिखाया मुझे और मुझे भी उनके लिए बहुत प्यार है और उम्मीद करता हूँ कि मैं वहाँ जल्दी जाऊँगा अमिताभ जी मैं कामना करती हूँ कि आपकी ये फिल्म और आने वाली फिल्में हमेशा की तरह बहुत बहुत कामयाब रहें आपने इतने मसरूफ़ वक्त में से हमें थोड़ा सा टाइम निकाल के इंटरव्यू दिया उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू